سب سے پہلے آپ کو بتائیں، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے سرکاری فنڈز کے بے جائے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ وزیر اعلیٰ آفس میں کھانوں کی دعوتیں ختم، دوپہر کے کھانے پر بھی پابندی۔ نگراں وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم میں ملوث ملزمان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ چیف سیکرٹری نے پرائز کنٹرول اور انتظامی امور جبکہ آئی جی پولیس نے امن و امان کے حوالے سے بریفنگ دی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کا حکم دیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ امن و امان کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے فوری ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔ محسن نقوی نے کلمہ چوک انڈر پاس ری ماڈلنگ کے منصوبے کو 15 فروری تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کفایت شعاری کے لیے بھی اہم اقدام سامنے آ گیا۔ سرکاری فنڈز کے بے جا استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ وزیر اعلیٰ آفس میں کھانوں اور دعوتوں کو روک دیا گیا۔ دوپہر کے کھانوں پر بھی پابندی لگا دی۔ وزیر اعلیٰ آفس آمد پر مہمانوں کو چائے اور بسکٹ پیش کیے جائیں گے۔ محسن نقوی نے اپنے لیے کھانا اور چائے گھر سے منگوانے کی نئی روایت بھی قائم کر دی۔ نگران وزیر اعلیٰ سے فاطمہ جناح میڈیکل کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل بھی ملے۔ محسن نقوی نے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ تو وہیں ناظرین، دوسری جانب تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ پہلے الیکشن کمیشن کے لاہور آفس کے باہر احتجاج کیا، پھر پی ایم جی چوک میں مظاہرہ کیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن سلیکشن کمیشن بن چکا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقرری کا معاملہ۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی کال پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کا الیکشن کمیشن پنجاب کے دفتر کے باہر احتجاج۔ مظاہرے کی قیادت حماد اظہر، شفقت محمود اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے کی۔ سینیٹر اعظم سواتی اور میاں اسلم اقبال و دیگر رہنما بھی شریک تھے۔ کارکنوں نے شدید نعرے بازی کی۔ صوبائی الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر جگہ کم پڑ جانے پر احتجاجی مظاہرین پی ایم جی چوک آ گئے۔ پارٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بارے تقرری مسترد کرتے ہیں۔ میں ارباب اختیار کو بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ ملک اس وقت جس نہج پہ آپ نے لا کے کھڑا کر دیا ہے، ایک غیر ذمہ دارانہ فیصلہ اس ملک کو انقلاب کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن تو میں بتا دیتی ہوں کہ ایک سال کا تحریک انصاف اپنی پوری جنگ لڑی تھی تمہارے ساتھ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ الیکشن لڑنا ہم جانتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عدالت میں بھی معاملے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ان سے انتقام لیں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب قانون کی پاسداری کرو۔ عدالتوں کو کہتا ہوں، ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہوش کے ناخن لے، سوچے، وہ کٹ پتلی نہ بنے، تم چھلا نہ بنے، اور وہ فیصلے کریں جو عوام کے لیے، پاکستان کے لیے صحیح ہو۔ مظاہرے کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ عمران خان سے چودھری پرویز لاہی کی ملاقات۔ پنجاب کے پی کے میں الیکشن کی تاریخ نہ ملنے پر عدالت جانے پر غور۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے جس میں 25 مئی واقعہ میں ملوث افسران کو پنجاب میں تعینات نہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ حماد اظہر کا اس بارے میں کہنا ہے کہ جمہوری عمل میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی کی ملاقات میں اسد عمر، فواد چودھری، سینیٹر اعظم سواتی، حماد اظہر بھی شریک ہوئے۔ ملاقات میں الیکشن کمیشن کے اقدامات کے خلاف آئینی آپشنز پر بات چیت کی گئی۔ الیکشن کمیشن کے متنازع اقدامات کے خلاف احتجاج کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرنے اور سیاسی آپشنز پر بھی بات چیت کی گئی۔ چودھری پرویز لاہی نے آئندہ سیاسی معاملات کے حوالے سے اپنی تجاویز سے آگاہ کیا۔ زمان پارک کے باہر میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حیثیت ایک منشی جیسی رہ گئی ہے۔ پاکستان پر مافیاز مسلط ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر اس وقت 40% نشستیں خالی ہیں۔ جس طریقے سے آج پاکستان کی پارلیمنٹ چل رہی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر 40% نشستیں خالی ہیں۔ یہ نشستیں اگر آپ دوبارہ ابھی فل کرنا چاہتے ہیں
आपको 17 से 20 अरब रुपया चाहिए। इस मौके पर साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुर्रम दस्तगीर के हुक्म पर प्लांट्स बंद करके मुल्क को अंधेरों में डुबो दिया गया। निगरान हुकूमत में जो भी हल्फ लेता है गैर जानबदारी का हल्फ लेता है। जब बिजली का लोड कम हो जाता है तो बहुत सारे पावर प्लांट्स आइडल पे चलते हैं। वो आइडल पे इसलिए चलते हैं ताकि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ड्रॉप ना हो। खुर्रम दस्तगीर साहब के हुक्म पे उन प्लांट्स को बंद किया गया और पूरे पाकिस्तान को अंधेरों में डुबो दिया गया, क्योंकि जब दोबारा चलाने का टाइम आया, जब वो प्लांट्स को बंद किया गया, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी गिर गई और दोबारा जब उसको रिवाइव किया गया तो रिवाइव करने के अंदर 24 घंटे लग गए। मैं समझता हूँ कि जो अरबों डॉलर का नुकसान एक दिन में पाकिस्तान को हुआ वो इनकी नालायकी की वजह से हुआ। पीटीआई रहनुमाओं का मजीद कहना था कि इमरान खान को हटाना ही इनका मकसद रह गया है। ऐसा लग रहा है कि पीडीएम हुकूमत का पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी कहते हैं इलेक्शन की तारीख का ऐलान आइन और कानून के मुताबिक होगा। एफी ड्रेन केस में सजा के खिलाफ अपील पर हनीफ अब्बासी लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। एफिड्रीन केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी अपने वकील एहसन बोन के हमरा लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत के 2 रुकनी बेंच ने वकला को 1 फरवरी को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। हनीफ अब्बासी ने 14 साल की सजा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में हनीफ अब्बासी ने कहा कि इस्तीफे आ गए हैं और मंजूर भी हो चुके हैं। गवर्नर इंतखाबात की तारीख का ऐलान आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। पंजाब और केपी के इंतखाबात में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लीड करेंगी। आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे और आइन और कानून किसी की ताबे नहीं हो सकता, अपनी किताबों के ताबे हो सकता है, इमरान खान के ताबे नहीं। और इंशाल्लाह ताला पंजाब का इलेक्शन वज़ीर-ए-आज़म आने वाले इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लीड करेंगे, इसी तरह शहबाज साहब, मरियम नवाज साहबा लीड करेंगे, अल्लाह ने चाहा। हनीफ अब्बासी ने मजीद कहा कि अगर बिलावल भुट्टो ने वजारत उज़्मा की ख्वाहिश का इजहार किया तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून लाहौर की सदारत मिलने पर खुशी का इजहार। खोखर पैलेस में कारकुनों ने जश्न मनाया। सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर इस बारे में कहते हैं कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का घर है और हमेशा रहेगा। इलेक्शन में पीटीआई को लाहौर से शिकस्त देंगे। इस बारे रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस महमूद। लाहौर के खोखर बरादरान को नून लीग में अहम जिम्मेदारी मिल गई। मलिक सैफुल मलूक को सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर बनाने पर जश्न का एहतमाम। खोखर पैलेस में घुड़ डांस, ढोल की थाप पर भंगड़े और नारेबाजी। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर का कहना है कि क़यादत को यकीन दिलाता हूँ, उनके एतमाद पर पूरा उतरूंगा, किसी से कोई इख्तलाफ नहीं। तमाम हलकों से लीगी कारकुन साथ खड़े हैं। मरियम नवाज का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। मरियम नवाज हमारी एक क़यादत है और जिसने मुश्किल वक्त में हमारी जमात को लेकर आगे गई और वो इंशाअल्लाह ताला तंजीम को बेहतर तरीके से सर अंजाम देंगी और इस्तकबाल बहुत बड़ा होगा, लाखों की तादाद में होगा। ये जमात का फैसला नहीं, ये वर्करों का अपना फैसला, इंशाल्लाह भरपूर इस्तकबाल करेंगे। खोखर पैलेस में जश्न की तकरीब में मलिक अफजल खोखर, अख्तर बादशाह, राबिया फारूकी और साबिक मेयर लाहौर समेत दीगर कारकुनों की कसीर तादाद शरीक हुई। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अवैस महमूद, लाहौर न्यूज़। और बंद रोड पर वाक़ सड़क निहायत खस्ताहाली का शिकार। खस्ताहाल सड़क के बीचों बीच कूड़े के ढेर खस्ताहाली और कूड़ा करकट हादसे का बाइस बन सकते हैं। इलाका मकीन सरापा एहतजाज कहते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं, इंतज़ामिया सरे से गायब है। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल, हम इस वक्त बंद रोड की एक सड़क पर खड़े हैं। यहाँ बंद रोड पर वाक़ है, इसके साथ ही गर्ल्स कॉलेज भी है और अहम शाहरा है। सड़क के बीच के अंदर कूड़े का ढेर भी मौजूद है। सड़क की जो हालत है बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत है। रोज़ के बेसिस पे यहाँ पे लोगों का गुजरगाह है, लोग गुजर रहे हैं यहाँ से। एक शहरी जो कि यहाँ के रिहायशी, इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। फैमिली का आना जाना होता है और साथ में कॉलेज भी है। उसके अलावा जो है ना, एक तो ये रोड इतनी है कि इसका मेन रास्ता है, ये गुजरने का रास्ता है, इधर कई दफ़ा ट्रैफिक जैम भी हो जाती है इसी वजह से।
और यह है कि ये कूड़ा यहाँ का यही है, ये हिलता नहीं है यहाँ से, और डब्बा भी यहीं का यही है। इंतज़ामिया बिल्कुल गाफिल नजर आती है, कूड़ा तक उठाने यहाँ से कोई नहीं आता, कचरे का जो डब्बा था वहाँ उसके आसपास ढेर लगता जा रहा है लेकिन कोई नहीं। एक और शहरी मौजूद है, अच्छा बताइएगा कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे? सड़क बिल्कुल टूट फूट का शिकार खराब है, क्या कहेंगे इस मुतालिक? यहाँ पे तो भाईजान काफ़ी दिनों से ये ख़राब है, कोई 15-20 दिन हो गया है, तो कोई भी इंतज़ामिया कोई भी करवा रहा है, नून लीग या तरीके इंसाफ वाले है, उनको चाहिए कि सड़क की इतनी लंबी नहीं है, ये 2-3 दिनों में बन सकती है अगर बनवानी हो तो ये तो पता नहीं, इन्होंने कोई 15-20 दिन हो गए ऐसे ही किया हुआ है। बिल्कुल आपने सुना, इनका कहना है कि कोई भी सीरियसली नहीं लेते इस एरिया को, बड़ा अहम एरिया है, इलाका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हुकूमत भी हमें गायब नज़र आती है, इंतज़ाम भी गायब नज़र आती है। उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ की इंतज़ामी है वो इसको बिल्कुल ठीक करेगी और जो लोगों की परेशानी है इनको हल किया जाएगा। जी अभी आपको बताएं, 5 साल में 10वीं IG पंजाब ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शफाफ इलेक्शन अवलीन तरजीह करार दिए। तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात पर जवाब दिया कि चुन चुन कर लगाए गए अफसरान वफाकी हुकूमत के मुलाजिम हैं, इंतखाबात के दौरान ज़्यादती करने वाले अफसरान का रगड़ा निकाल देंगे। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर हुसैन। पंजाब पुलिस के नए कमांडर ने कमान संभाल ली। डॉक्टर उस्मान अनवर ने 5 बरसों में 10वें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का चार्ज संभाला। CPO आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शफाफ इंतखाबात को अवलीन तरजीह करार दिया। सूबे में मनपसंद अफसरों की तकर्री के तहरीक इंसाफ के इल्जामात पर बोले, चुन चुन कर लगाए गए अफसरान विफाक के मुलाजिम हैं, हर शहरी का जायज मुकदमा दर्ज होगा। पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, वी आर प्रोफेशनल ऑफिसर्स, हमारी पोस्टिंग्स भी होती हैं, ट्रांसफर्स भी होती हैं। जहाँ तक किसी भी फैसले का ताल्लुक है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने किया हो, दैट इज़ बियॉन्ड आवर स्कोप। लाजिम आता है, कोई भी सियासी जमात है, एहतजाज उसका हक होता है। चुन चुन के जो अफसरान हैं जो आप कह रहे हैं, वो तमाम अफसरान फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम भी खाई है और उन्होंने उसको इंश्योर भी किया है। डॉक्टर उस्मान अनवर का मजीद कहना था कि एहतजाज करना हर सियासी जमात का जमहूरी हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इमरान खान पर हमले की तफ्तीश करने वाली GIT का फैसला कानून के मुताबिक होगा। जो GIT गवर्नमेंट बनाती है उसमें जो लॉ होगा, पुलिस का जो ऑफिसर भी गवर्नमेंट हुकूमत का एक इदारा है कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं है, तो जो भी इदारा होगा वो हुकूमत के मातहत होगा और हुकूमत किसी कानून के मातहत होगी। तो ये जो GIT बनेगी या जो फिर आप कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट का, आपको शक है वो आप कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें जो लॉ कहेगा उसके मुताबिक तफ्तीश होगी और इंशाअल्लाह ताला मेरिट पर होगी। नए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने दहशतगर्दी की हालिया लहर, मुनशियात, सोशल मीडिया से मुतालिक जराइम की रोकथाम और तदारुक के लिए इक़दामात पर भी जोर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी की फ्राहमी मामूल पर ना आ सकी। सारिफिन की दर्जाबंदी से भी अशिया सुरिया की फ्राहमी तलब के मुकाबले में कम है। बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम के सारिफिन को कम निर्ख, जबकि आम सारिफिन के लिए मार्केट रेट मुकर्रर हैं। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की फ्राहमी में बेहतरी न आ सकी। सार्फिन की दर्जाबंदी के बाद भी अशिया की फ्राहमी मुतासर। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की किल्लत पर काबू न पाया जा सका। अशिया ज़रूरिया के निर्ख आम मार्केट से कम मुकर्रर किए गए। अशिया की दस्तियाबी का मसला हल न हुआ। आटा और घी की दस्तियाबी तलब के मुकाबले में कम है। सस्ते यूटिलिटी स्टोर पर घी की फ्राहमी गुज़श्ता 2 हफ्ते से मुतासर है। अशिया की फ्राहमी के लिए सार्फिन की दर्जाबंदी भी जारी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर सारिफ को सस्ती अशिया की की पॉलिसी। आम सारिफ को कम सब्सिडी पर अशिया की फ्राहमी की जाती है। बेनज़ीर प्रोग्राम के सारिफ के लिए घी के निर्ख 300 और चीनी 70 रुपए फी किलो मुकर्रर। आम सारिफ के लिए चीनी 89 और घी के निर्ख 375 रुपए किलो हैं। बेनज़ीर प्रोग्राम के सारिफ को 10 किलो आटे का थैला 400 और आम सारिफ को 648 रुपए में दिया जाता है। सारिफिन का कहना था कि आटा चीनी तो मिल जाता है, लेकिन घी के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। रेट भी मार्केट के बराबर कर दिए हैं। पहले तो आटा बिल्कुल नहीं मिलता था, अब तकरीबन मिलना शुरू हो गया। घी तो बिल्कुल मैंने देखा ही नहीं इस इधर। घी की कोई शॉर्टेज है, बाकी जो दालें वगैरह जो बाजार में जो रेट है वही रेट यहाँ है। सारिफ को नादरा के तस्दीकी मैसेज के बाद अशिया की फ्राहमी की जाती है, जिसमें भी अक्सर औकात तकनीकी मसाइल का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल और आटे की दस्तियाबी के हवाले से इजलास हुआ। सरकारी आटे की फ़रोख्त से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर क्रैकडाउन से मुतल्लिक बताया गया। ब्रीफिंग दी गई कि सरकारी आटे की फ़रोख्त 2800 दुकानों और 208 ट्रकों पर की जा रही है, जबकि लाहौर में आटे की दस्तियाबी और फ्राहमी का कोई भी मसला नहीं है।
کمشنر لاہور نے تمام تر ڈی سیز کو نجی ذخیرہ اندوزی پر کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت کی۔